प्रतिष्ठा अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अवयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। निर्विशेष ब्रह्म ज्योतिर मु हेउछि आधार, ताहा हेउछि अंतिम सुखर स्वरूप स्थिति एवं ताहा अमर अच्युत और शाश्वत अटे। ताहा अमर अच्युत और शाश्वत अटे, ताहा अंतिम सुखर स्वरूप स्थिति। ब्रह्मण अर्थात निर्विशेष ब्रह्म ज्योतिर प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च। तो ये जो कहगला अमृतस्य अव्ययस्य च अहम अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा। तबे शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च। शाश्वत धर्म र शाश्वत सुखर ऐकान्तिक बा एक होची मु आ मु ब्रह्मण अर्थात निर्विशेष ब्रह्म ज्योति रहुची प्रतिष्ठा अर्थात सी मोर अंग ज्योति, सी मोर अंग ज्योति। चैतन्य चरितामृत द्वितीय श्लोक रे कौन कहला ना जदि जद्दैतम ब्रह्मपनिषादि तदपेक्षितम। अद्वैत ब्रह्म, ये अद्वैत ब्रह्म, ये ब्रह्म ही समस्त ये भौतिक सृष्टिर आधार, ये ब्रह्म ही शाश्वत जीवात्मा स्वरूप, से ब्रह्म ही सुखांति सुख परमात्मा प्रभाव स्वरूप। तबे आमे कहिबा भगवान ताहले कौन ना भगवान हेले ज्योतिर्मय पुरुष सदुजल विग्रहस्य। ब्रह्म संहिता कहीगला भगवान एक उज्जवल पुरुष सदुजल विग्रहस्य च। सूर्य जे भली तार किरण द्वारा आच्छादित, ठीक से भली भगवान ज्योतिर्मय पुरुष से तंकर ब्रह्म ज्योति द्वारा आवृत। तबे आमे सूर्य को जेमति कहूचे सी एक ज्योतिर उत्स, सेमती जो माने निर्विशेषवादी, जो माने परमार्थिक तत्व जानती नाही बा जानती नाही बोली कह जीवनी, आंशिक भाव जानती। कारण ब्रह्म ऊपर कौन अच्छे आ ब्रह्म भितर कौन अच्छी एक कथा से जानती ना। सूर्यमंडल भितर जो सूर्य देखुचे आम जी उदय होची अस्त होची ता भितर कौन अच्छी से कथा साधारण लोक जानी पारंती नाही बा कहीं जानी परिवेनी, वैज्ञानिक माने मध्य जानी पारंतु ना से। हरे कृष्ण। तबे वैज्ञानिक माने मध्य जानी पारंती नाही, कारण वैज्ञानिक जो पाठ पढ़ती से को पाठ की से को पाठ, सी तो वेदशास्त्र पाठ करती नहीं। से माने आमर जो 108 मौलिक तत्व अच्छी
ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧାର ବୋଲି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 108 ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ମିଶିକି ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି ମୌଳିକ ଗୁଡିକ 108 ପ୍ରକାର। ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏକ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ତାପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗବେଷଣା କରନ୍ତି କୋଉମାନେ? ଗବେଷଣା କରିବେ କଣ? ଗବେଷଣା ହେଇକି ଅଛି। ଋଷିମୁନି ମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ଏସବୁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର କଥା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରପାର କଥା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରପାରକୁ କିଏ ଯିବ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରପାରକୁ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରପାରକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶିବଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କାରଣ ବିରଜାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ବା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିରଜାର ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାୟା ଦେବୀ ବା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମାୟା ପରଶିତେ ନାରେ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାୟା ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ହଉଛି ହିରଣ୍ମୟ, ଅର୍ଥାତ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିମୟ, ତେଣୁ ମାୟା ସେଠିକି ଯିବନି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ମାୟା ହଏ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ମାୟା ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ, ଛାୟବ ଯସ୍ୟ ଭୁବନାନି ବିଭର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଆପଣ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଆମର ଜାଗତିକ ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଅନ୍ଧକାରମୟ କାଇଁ? ଆମେ ତ ଏଇଠି ଆଲୋକରେ ଅଛେ, କଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ? ନା, ନାଇଁ, ସେଇଟା ଅନ୍ଧକାରମୟ। କାରଣ କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାରମୟ? ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଅନ୍ଧକାରମୟ କେମିତି ହେଲା? ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ ନ କଲେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଜଣା ପଡିବନି, ପ୍ରକାଶିତ ହବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିଲା, ଦାଣ୍ଡରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଏଠି କୋଉଠି ପଡିଲା? ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ଆମ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହାଶୂନ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର କିଛି କିରଣ ଅଛି, ତେବେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ସେଠିକି ଯିବ ସିଏ ଆଲୋକିତ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇଟା ଆଲୋକ। ଯେମିତି ଆମର କୋଉଟା ଚାଲୁଛି, ତାରା ଗୁଡା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାରା ଚାଲୁଛନ୍ତି କି ସେଠି? ସେଠି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ମହାକାଶ ଯାନ ସବୁ ଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାରା ଚାଲୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆରପଟକୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ସେଇ ହେତୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗପାଳ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏମାନେ କେହି ସେପଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଣ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମର ଉତ୍ସ ହଉଛି ମୁଁ। ଅମୃତ ଅମୃତ ଅମୃତସ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତର ଅବଶ୍ୟ ଅମରର ଶାଶ୍ୱତସ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ।
तबे ये जो ब्रह्मन ये चिरस्थायी अमृत तुल्य अव्यय अर्थात शाश्वत तो कहगला। धर्मस्य ये स्वरूप स्थिति सुख सुख से सुखर ये हूँ अंतिम सुख। ब्रह्म सुख हूँ अंतिम सुख। ब्रह्म ये ब्रह्म संहिता कहले कौन चिदानंद ज्योति परम अपि तदा स्वादम अपि च। यह आस्वादनीय जिनिस ये जो ब्रह्म ज्योति ये समस्त आधार सुखर आधार सबकि आधार सबकि से तार एक क्षुद्र कणिका है जीव। जीव आनंदमय शाश्वत अमृतमय ज्ञानमय इत्यादि इत्यादि किंतु जीव दुख पाइबार कारण से जेहेतु भौतिकता संस्पर्श आसे चारि अंतकरण आबद्ध हुए से जो से दुख पाए। तेणु भावार्थ प्रपात कहते अमरत्व अच्युत भाव शाश्वत भाव और सुख को नहीं ब्रह्मण गठित। ब्रह्मण अनुभूति हेउछि दिव्यानुभूति बा प्राथमिक अनुभूति। ये ब्रह्मण मम जोनि महद ब्रह्म मम जोनि महद ब्रह्म अर्थात ये भौतिक जगत सृष्टिर मूल उत्स होउछन्ति ये ब्रह्मण। ये भगवान कर ये भौतिक जगत सृष्टि करिवार मूल केंद्र ब्रह्मण जहाँ महतत्व कह जाए जो ये समस्त तत्व स्थूल भाव रे प्रकाशित हुए ता पूर्व सूक्ष्म भाव रे रही थाए। सूक्ष्म भाव रे रहिले ताको कहा जिवो कोन ना प्रधान जेतेबेले प्रकाशित हबो ताको महतत्व कहा जिवो। ए महतत्व 28 तत्व रे विभागीकरण करा जायछि। तेणु परमात्मा अनुभूति हेउछि मध्यम स्तर द्वितीय स्तर अनुभूति। परम पुरुष भगवान का अनुभूति लाभ करबा होछि परम अनुभूतिर अंतिम अनुभूति। हरे कृष्ण। तबे परमात्मा एवं निर्विशेष ब्रह्म परम पुरुष भगवान कर अंतर्गत सप्तम अध्याय वर्णना करा जायछि जे भौतिक प्रकृति परमेश्वर निकृष्ट शक्ति प्रकाश। सप्तम अध्याय कहा जायछि जे भौतिक प्रकृति परमेश्वर निकृष्ट शक्तिर प्रकाश। भगवान उत्कृष्ट शक्तिर अंश द्वारा निकृष्ट भौतिक शक्ति मध्य गर्भ संचार करती निजर इक्षण द्वारा निजर चित शक्ति को माया बा निकृष्ट शक्ति रे युक्त करांती। ताहा भूत प्रकृतिर दिव्यतार स्पर्श अटे। ताहा भूत प्रकृति रे दिव्यतार स्पर्श अटे। जेतेबेले भूत प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आत्मज्ञान लाभ करने को आरंभ करे सेतेबेले से भौतिक स्थितिर स्तर निजक उन्नीत कराए। क्रमे क्रमे से उन्नीत करी ब्रह्म धारणा स्तर रे उपनीत हुए। ब्रह्म धारणा जोटा कि कहगला कौन ना ब्रह्म भूयाय कल्पते अगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते पूर्व श्लोक रे कह जाय। जीवन रे ब्रह्मानुभूति बा ब्रह्म धारणा स्तर अनुभूति प्रथम सोपान अटे बा प्रथम स्तर अटे। एई स्तर रे ब्रह्मानुभूति लाभ करथिया व्यक्ति भौतिक स्थितिर ऊर्ध्वरे अवस्थित किंतु से ब्रह्मानुभूति लाभ रे वास्तव पूर्णता लाभ करि परि न थाए। ए जिनसटा कोन कहले प्रपात ए जिनसटा कोन ना परिपूर्णता जो सुख एठी कहगला जे ऐकांतिक सुख कारण आउ किछि सेतरे मिसे नै कि ब्रह्म सुख पाई आउ का पर निर्भर करिया पड़नी आउ कौन शक्ति पर निर्भर करिया पड़नी। तेणु एकांत सुख है ब्रह्म सुख। ये है एकांत शाश्वत सुख अमृतमय किंतु हेले मध्य
संपूर्ण नुहे परिपूर्ण नुहे प्रहलाद महाराज कहले कौन एटा एई ब्रह्म सुखटा कि भली ना प्रेम सुख भगवान जो प्रेममय सेवार सुख ये प्रेम सुख आगरे ये ब्रह्म सुख कि भली सी जदि अनंत समुद्र हुए ये ब्रह्म सुख गोटे खात उदक गोटे गातर पानी भली तेणु ब्रह्मानुभूति लाभ रे वास्तव परिपूर्णता न थाए जदि से इच्छा करे तेबे से ब्रह्मानुभूति स्तर अवस्थान करिपारे तत्पर क्रमे से उन्नति करी परमात्मा अनुभूति लाभ करे तत्पर से परम पुरुष भगवान का अनुभूति लाभ करे वैदिक शास्त्र यार अनेक उदाहरण अच्छी चारि कुमार प्रथमे निर्विशेष ब्रह्मधारणा स्तर रे अवस्थान करुथिले किंतु तत्पर से माने क्रमे भक्ति योग स्तर को उन्नति कले जो निर्विशेष ब्रह्मधारणार स्तर ऊर्ध को उन्नति जे न करि पारे तार अधोपतन हेबार संभावना खूब बेसी कहीं ब्रह्मधारणा रे अवस्थान करिवो से तो एकांत सुख शाश्वत सुख तेबे पतन हबार कारण कौन संभावना कहीं थाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण सेठी होची ब्रह्म ज्योति पर्यंत आ सेठू पुण्य सरीगले पुणी पतन हुए ना 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 सेटा नुहे से परम पुरुष भगवान को बाबद रे धारणा तार नथाए तार धारणा न थाए तेणु एपटे कौन होउची ना भौतिकतार प्रवाह गुण प्रवाह चलछि एपटे गुण प्रवाह निर्विशेष ब्रह्म हेले ज्योति प्रवाह यदि ता आरपट को व्यक्ति ताको अतिक्रम करके न गला तेबे से ए गुण प्रवाह द्वारा से पुनर्बार आकर्षित होगी ये जगत को आसीबो तेणु भगवान जो असुर मान को संहार करती से पर्यंत से सिद्ध लोक बोली कहा जाए से पर्यंत नहीं जाती किंतु ता आरपट को सेमानकर जीवार क्षमता न थाए तेणु तांकर ए गुण त्रिगुण द्वारा आकर्षित विशेष भाव सतगुण रे आकर्षित होगी पड़ी आसंती तापरे ये सतगुण कबलित हवा पर तापरे रजगुण तमगुण इत्यादि इत्यादि सब तो अच्छी भौतिक जगत को आसला माने सेठी विभिन्न जो जिनस को आम मना करुवा ना 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 मु इंग्लैंड गले सेठी मद पीबिनी महात्मा गांधी कहते माँ अवश्य से माँ कथा रक्षा करी से मद सेठी स्पर्श कर नथिले अनेक डाक्तर इत्यादि परामर्श देते आप मद न पीबे ये जगत ये ठंडा अंचल आप बंची पारे तिष्टि पारे से कहले जहाँ किसी हो जाऊ किंतु माँ को कथा को मु अन्यथा न करें किंतु अन्य माने गले कौन कहे ये सीना माँ को पाथ्य कर ना माँ को पाद छुंगी मु नियम कर मद स्पर्श करें अन्य माने गले कौन कहे ना 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 वास्तविक एठे चलवा कष्ट होची आंठू गंठी पीड़ा होची हाँ पाटी फेटुनी इत्यादि मद टिके न पकड़ले भल लगे तेणु आस्ते आस्ते से अभ्यस्त हुई कारण से परिवेश से ठीक ए भौतिक जगत को जिते शुद्ध जीव फेरी आसे से पुणी आउ भौतिक जन्म मृत्यु चक्र आवर्तन से पड़े तेणु असुर माने जो माने जानती भगवान जो मान को निधन करती भगवान के हाथ में निधन हुंती चक्र द्वारा निधन हुंती शिशुपाल इत्यादि इत्यादि से माने कौन कले ना से पर्यंत गले से सिद्ध लोक पर्यंत पुनर्बार भगवान जो लीला करे पुणी जगत को आसवे कारण आरपट को जीवार क्षमता नहीं केवल प्रेममय सेवार जो भक्त मान युक्त था से पट को जापर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म को अतिक्रम करके जीवे गोटे प्रवचन मुझे महाराज गौरगोविंद स्वामी महाराज कौन
ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରଜାରେ ସ୍ନାନ କରିବ ବୁଡ଼ ପକେଇବ ସେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏସବୁ ଶରୀର ସେଇଠି ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସାରୂପ୍ୟ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଭଳି ଏକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ସ୍ତରରୁ ଉନ୍ନତି କରି ଆଉ ଅଧିକ ଗତି ନ କରିପାରେ ନଥାଏ ତେବେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରଣା ଲାଭ କରିପାରି ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାହା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧପତନ ହେବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାରଣାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ କଣ କହିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ଆମର ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଗୁଡାକ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟୀ ରସମୟୀ ଏ ଲୀଳାକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଏ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ସେ ତ ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ। ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଭକ୍ତ ଯିବ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ସେ ବିଚିତ୍ରତା ସୁଖର ବିଚିତ୍ରତା ରସର ବିଚିତ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଛାଡି ପାରିବନି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣାରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରପାତ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ନ ହୁଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ ନ କରେ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ରସବୈ ସହ ରସଂ ହି ଏବାୟଂ ଲବ୍ଧାନନ୍ଦୀ ଭବତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସରୋବରରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଓ ସେବକ ପ୍ରାୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ଅବ୍ୟୟ ସୁଖ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅନୁସରଣ କରେ। ତେଣୁ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ହେଇଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ମନେକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅର୍ଡରଲି ଆସିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତାଙ୍କର କୁକୁର ଆସିବେ ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚପଲ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ଚପଲ କୋଉଠି କାଢିବେ କି କଣ କରିବେ ଚପଲ ବହନ କରୁଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ ବିମାନରେ ଯିବେ ସେଇ ବିମାନରେ ସେ ଯିବ। ତା ସିଟଟା ସେଠି ନ ହୋଇଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିମାନରେ ଯିବ ନା ନାଇଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉଠି ଖାଇବେ ମନେକର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ସିନିୟର IAS ଅଫିସର ମାନେ ଥିବେ ଏସବୁ ସେ ଚପଲ ଯିଏ ବହୁଥିବ ତାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ନମସ୍କାର ଏସବୁ ବି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ଯୋଉ ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ବା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ବା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ ଅବ୍ୟୟ ଭାବାନୁଭୂତି ଲାଭ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବାରତ ଅଛି ସେ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ସାରିଛି। ଯଦିଓ ଜୀବ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଣ ଅଟେ ତଥାପି ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ତାର କାମନା। ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯଦିଓ ଜୀବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଣ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମକଣିକା ଜୀବ ହଉଛି ଅଣୁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ତାର ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ କରି ମନ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ତକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସବୁ କରି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ ସେ ତାର ଗୋଟେ କାମନାଟା ତାଠୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କାମନାଟା ଯାଏନି ଉପଭୋଗ କାମନା ତାହା ହିଁ ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହଉଛି ଉପଭୋଗ କାମନା। କିନ୍ତୁ
ठीक तार विपरीत आनंद प्रदान करवा अन्य को आनंद दवा विशेष कर भगवान को आनंद दवा ये तो प्रेम ही सब गला भगवान सहित युक्त हो गले काली आम आलोचना करथिले जे निंदित व्यभिचारी वृत्ति मध्य गोपी माने अवलंबन कर भगवान सहित युक्त होइथिबारु सी होचंती गुरुमा साधन भक्ति रे श्रेष्ठ स्थान रे अवस्थान करछंती सखीगण मोर परम सुहृद जुगल प्रेमर गुरु तदनुगा होए से विवर आधार चरण कलपतरु एटा भगवान के पाखरे प्रयोज्य तेणु पूर्ण कृष्ण चेतना रे अवस्थान हेले से सांगे सांगे दिव्य स्तर रे अवस्थान करे भूत प्रकृति आयताधीन करिवार जो अवैधानिक कामना तार थाए ता सांगे सांगे दूरीभूत हो जाए तेणु श्रवण कीर्तन स्मरण आदि रुजु आरंभ होइथिबा अनुमोदित नवधा भक्ति योग भक्ति भक्त मेल रे अभ्यास करिवा उचित क्रमे एपरि सत्संग द्वारा गुरु आचार्य प्रभाव व्यक्तिर भूत प्रकृति को उपभोग करिवार कामना दूरीभूत हुए एवं से भगवान कर दिव्य सेवा दृढ़ भाव में अवस्थान करे कारण ताकू सेवानंद मिलू थाए ना से सेवानंद मिले जो से ये सब जागतिक सुख को थुकार करी परित्याग करे यही अध्याय 22 श्लोक ठारू शेष श्लोक पर्यंत ये विधि वर्णना कर भक्ति योग मार्ग रे भगवत सेवा अत्यंत सहज भक्ति योग मार्ग रे भगवत सेवा अत्यंत सहज व्यक्ति सर्वदा निजक भगवान के सेवा नियुक्त रखा उचित भगवान को अर्पण करा प्रसाद महाप्रसाद सेवन करने उचित भगवान पाद पद्म अर्पित पुष्पराज को ग्रहण करने उचित जो सब स्थान रे दिव्य लीला भगवान करते से स्थान मान परिदर्शन करने उचित भगवान दिव्य लीला विषय पाठ करने उचित से भक्त मान सहित किपरि स्नेहर आदान प्रदान करछंती भक्त आख्यान पाठ करने उचित सर्वदा ये दिव्य ध्वनि अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करिया उचित भगवान एवं तांकर भक्त मानकर आविर्भाव तिरोभाव दिवस मान पालन करिया उचित अर्थात से दिवस मान करे उपवास करे भगवान को स्मरण करिया उचित यही प्रकार विधि अवलंबन कले व्यक्ति संपूर्ण रूपे समस्त प्रकार भौतिक कर्म दूरे ये प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति अवस्थान करिपारे से गुण रे परम पुरुष भगवान कर सह सम भगवत गुण रे ये यही प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति अवस्थान करुथाए अर्थात ब्रह्मानुभूति स्थिति लाभ करुथाए जेटा कि सिद्ध लोक कह जाए से सिद्धि तर प्राप्त होता है से ये भगवत गुण गुड़िक जहाँ भगवान पाखे अच्छी से गुड़िक धारण करने को सक्षम होता है हरे कृष्ण आज भक्ति वेदांत भाषा श्रीमद भगवत गीता गुणत्रय विभाग जो शीर्षक चतुर्दश अध्याय शेष हेले तापरे पुरुषोत्तम योग श्रीमद भागवतम ओ श्लोक पाठ करछंती 29 ये जो श्लोक गुड़िक लिखा जाइछि आमे ब्रह्मा स्थान रे यदि भगवान को आनिक अवस्थान करवा ताहले अति सुंदर अति सुंदर कथा ये हिरण्यकशिपु कहूछ किंतु गोटे जिनस अभाव हो गला जमती सब किछि करवा लुण पकेबानी कि किरोसिन पकईदवा ताहले कौन हम से खाद्य व्यंजन सब नष्ट हो गला गोटे ठोपा किरोसिन रे ये भली यार कथा तेणु से प्रार्थना करुच्ची ब्रह्मा को जे नम आदाय विजाय ज्ञान ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राण इंद्रिय मन बुद्धि विकारे अव्यक्तयुषे तम इसी से जगत्रय सुसश्च प्राणेन मुखेन पति प्रजानं चित्तस्य चित्तेर्मन इंद्रियाणं पतिर्महान भूतगुणाशयेष हे प्रभु आपण ए भौतिक जगतर उत्स स्थावर जंगम समस्त जीवंकर प्रभु ओ नियंता एवं आपण सेमानकर चेतना को अनुप्राणित करती
आपण मन कर्मेन्द्रिय आपणक मन कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियर पालक अतएव आपण समस्त भौतिक उपादान और सेगुड़िकर गुणावली नियंता आपण समस्त भौतिक उपादान कौड़ा हरे कृष्ण भौतिक उपादान कौड़ा ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଯୋଉ ହସ କଉଡ଼ା ଖୁସି ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଏଇ ବାସନ କୁସନ ଘର ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଉ ଏଇରା ନା କଣ ଅଛି ଉପାଦାନ ପରା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଇନି ଉପାଦାନ କୁହାଯାଇଛି ଏ 24 ତତ୍ତ୍ୱ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚଭୂତ ହଁ ପଞ୍ଚ ଚାରି ଅନ୍ତକରଣ ଏସବୁ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସେଗୁଡିକ ଗୁଣାବଳୀ 3 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆସିବେ ତେଣୁ ୟାକୁ ୟାର ନିୟନ୍ତା ୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆପଣ ସମସ୍ତ ବାସନାର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ବାସନା ଅର୍ଥାତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କାମନାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟନ୍ତା कर्म अनुसार आपण शरीर प्रदान करती ए श्लोकर स्पष्ट भाव में कहुए सबकि आदि उत्स होती जीवन आदि उत्स होती जीवन ये भगवान बोली कहना परम जीव कृष्ण ब्रह्मा को प्रथम उपदेश देते श्रीकृष्ण होती परम पुरुष नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम ब्रह्मा होती पुरुष ब्रह्मांकर आदि उत्स होती श्रीकृष्ण से श्रीकृष्ण भगवत गीतार कहते मत परतर नान्य किंचित अस्ति अर्जुन मोठार परतर आउ कौन तत्व ना श्रीकृष्ण ब्रह्मांकर आदि उत्स और ब्रह्मा ये ब्रह्मांडर आदि उत्स ब्रह्मा ये ब्रह्मांडर आदि उत्स ब्रह्मांकर उत्स होती भगवान तेणु श्रीकृष्णकर समस्त गुणावली और कार्यावली क्षमता ब्रह्मा मध्य रही ब्रह्मा से पावर पाई भगवान देते चतुश्लोकी भागवत से ज्ञान प्रदान कर ब्रह्मा ज्ञान प्रदान कले ज्ञान धारण कले 100 वर्ष तपस्या कर हिसाब से से कहूँ हे प्रभु मूर्तिमान वेद रूप हाँ हे प्रभु मूर्तिमान वेद रूप समस्त जागी ब्राह्मण मानकर कार्यकलाप संबंधी ज्ञान द्वारा आपण अग्निष्टोम आदि 7 प्रकार यज्ञ अनुष्ठान कर वस्तु पक्षी आपण 3 वेदर वर्णित यज्ञानुष्ठान करने को जागी ब्राह्मण मान को अनुप्राणित कर ये ब्रह्मा ये ब्राह्मण मानकर गुरु ब्राह्मण मान कहले प्रथमे तो पार्षद मान ऋषि मुनि आसिले आमर चारिकुमार आसिले नारद आसिले अन्य ऋषि माने मध्य आसिले अंगिरा इत्यादि सब ऋषि माने ए समस्ते आसिले से माने को सब ए ज्ञान से प्रदान करुछंती आ परमात्मा रूपे आपण समस्त जीवंकर अंतर्जामी आपण अनादि अनंत सर्वज्ञ आपण स्थान और काल सीमार अतीत परमात्मा रूपे ये विष्णु परमात्मा ये कहून परमात्मा क्या कहे ब्रह्मा को आपण परमात्मा रूपे समस्त जीवंकर अंतर्जामी आपण अनादि अनंत सर्वज्ञ आपण स्थान और काल सीमार अतीत ए कालर अतीत बोले कौन आपण को काल स्पर्श करें ना स्पर्श करें ना तमर तो एक परार्ध बयस भोग हो गला आ गोटे परार्ध वर्ष अच्छी 2 परार्ध तुम आयुष हाँ किंतु ब्रह्मांकर आयुष बहुत लंबा से जो कालर सीमा अतीत बोली कह जाए किंतु कालर परमात्मा प्रभावर अतीत से नुहंती ब्रह्मा नुहंती आपण देखते ब्रह्मांकर सब दाढ़ी गुड़िक कला ना धला सब धला हो गला 50 वर्ष अतिक्रम कर गले से तापरे 31 श्लोक रे कहछि तमेव कालो अनिमिषो जनानां
आयुर्लोभ आद्य अयवै क्षीणोषि कुटस्थ आत्मा परमेष्ठियजु परमष्टि अजु महास्तौ जीवलोकस्य च जीवात्मा। हे प्रभु आपण नित्य होई सर्वद्रष्टा नित्य काल रूपे लव पल मुहूर्त आदि विभिन्न अंश द्वारा आपण समस्त जीवर आयुष हरण करंतु। एभली आयुष किए हरण करे? किए से हरण करे? लव पल मुहूर्त। पंचम स्कंदरे हम पढ़ुके लव क्या कहा जाए, पल क्या कहा जाए, मुहूर्त क्या कहा जाए। आमर जमी सेकेंड मिनिट घंटा, घंटा पर कौन प्रहर, प्रहर पर आह्निक दिन, दिन पर पक्ष, पक्ष पर वर्ष इत्यादि इत्यादि सब अच्छे। तबे एठी हिरण्यकशिपु कहूची जे आपण सर्वद्रष्टा नित्य काल रूपे लव और मुहूर्त इत्यादि इत्यादि द्वारा आपण समस्तंकर आयुष हरण करछंती। 7:30 बा 7:30 रे आमे कथा आरंभ कले आउ 7:30 आसीबो कि से मुहूर्तटा आसीबो कि तार अतिक्रम करि गलानी। तेणु आपण अपरिवर्तनीय परमात्मा रूपे कुटस्थ साक्षी परम नियंता जन्म रहित सर्वव्याप्त जीवर कारण ओ नियंता। तेणु ये सब कथा से कही चली। कुटस्थ शब्द अर्थ परमेश्वर भगवान यदिव सर्वत्र अवस्थित तथा सबकिछि केन्द्र उसे अपरिवर्तनीय ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान निजर पूर्ण सत्ता सहित समस्त हृदय विद्यमान। अच्छा उपनिषद भगवान जमी गोटे केन्द्र रे अछंती आउ समस्ते तांकर चतुर्पार्श्व रे अछंती, ठीक ये शरीर मध्य मध्य भगवान हृदय रे अछंती आउ अनान उपादान यथा प्राण इंद्रिय अंतकरण जो आमर तन्मात्र इत्यादि इत्यादि सब ता चारिपटे थाई ये पंचभूतटा रहिला शेष रे। से विषय ब्रह्म संहिता कह जाए अद्वैत अद्वैत अनादि अनंत रूप तांकर बहु रूप अच्छी तथापि से अद्वैत एवं एक अपरिवर्तनीय। भगवान जेहेतु सर्वव्यापक तेणु नित्यकाल मध्य अवस्थित। जीव मान को भगवान विभिन्न अंश बोली कहा जाए कारण समस्त हृदय रे अंतर्यामी रूपे विराजमान भगवान समस्त आत्मा स्वरूप ताहा अचिंत्य भेदाभेद दर्शन घोषित होइछि। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन कौन? अचिंत्य भेदाभेद दर्शन प्रभु जी जीव माने अणुब्रह्म किंतु विभिन्न प्रकार अचिंत्य अद्वैत दर्शन अनुसार जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अद्वैत दर्शन अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तेणु अचिंत्य भेदाभेद दर्शन अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मध्य सत्य किंतु क्षणस्थायी परिवर्तनशील। ब्रह्म परिवर्तनशील नुहे, जगत परिवर्तनशील। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अर्थात आपणकर चारि पीढ़ी बा जेजेबापा को आपण देखिछंती ना? अर्थात आपण जेजेबापा नथिले आपण बापा शून्य खसिले हाँ सुलता माता जी, हाँ ना नहीं ना थिले समस्ते किंतु आमे देखिनु त माने सेटा अचिंत्य। तेणु महाप्रभु कहि ना ना जगतटा अछि परिवर्तनशील क्षणस्थायी। जो रूपटा आमर थिला
20 वर्ष तले बा 30 वर्ष तले से रूप आउ अच्छे कि जी मनकर आपण को आपण स्कूल समय देखि स्कूल मेट थी आज आपण को आसिक भेटिला आपण कहे मु सुलता ए तू सुलता मु चिन्ह पारुनी पिला बेले एमती देखा जाउथुलु एबे एमती देखा गलुनी एभलिया कथबार्ता अर्थात ये जिनस परिवर्तनशील भगवान सर्वत्र विद्यमान किंतु आमे देखिने माने हम से चिंता चिंता जीवन है सर्वत्र विद्यमान भगवान किंतु आमे कोन देखि पारुचे कि सेटा जीवन है सेटा एमती कोन कहलबो नीलिमा माताजी कोन माताजी एमती कहले चिंत्य अचिंत्य माने जोड़ा अछंती पुनी ये भगवान कथा पड़िनी जगत कथा पड़ी जगत परिवर्तनशील जीव माने जीव शरीर परिवर्तनशील किंतु भगवान तो भगवान कर परिवर्तन अछि कि भगवान कर परिवर्तन नहीं भगवान कर परिवर्तन नहीं से जेमती अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप आद्य पुराण पुरुष नव यौवन से नुआ युवक भाया सदा बेले रही अद्वैत परा प्रथम रही एवं मध्य अछंती से भलिया आगु मध्य से भली रहिथिबे से नव यौवन तांकर स्वरूप तेणु यही जहा किछि एठी स्तुति करूछि अति उच्च कोटर स्तुति किए जे हिरण्यकशिपु से जदि विष्णु को एभलिया स्तुति करि थांता सब किछि ठीक ही थांता से ब्रह्मा को स्तुति करूछि एभलिया तेणु विष्णु तत्व अर्थात शाश्वत तत्व से तत्व अनुसार ब्रह्मांड नष्ट हेले मध्य आमे जदि कहबा ब्रह्मा विष्णु शिवजी ये माने एक तत्व विशिष्ट ना एक तत्व हेले विष्णु ब्रह्मांड आरपट को जाई परिबे ब्रह्मा शिव जाई परिबेनी बुझ परले तो ब्रह्मा शिव ब्रह्मांड आरपट को जाई परिबेनी हरे कृष्ण ए भली भाबे आमे भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम आलोचना एवं आस्वादन कले आशा करे आपण माने टिके बुझी थिबे भल भाबे आस्वादन करथि हरे कृष्ण जय श्री प्रभु ब्रह्मा तो किसी कहले जे मते काहे एमती सृष्टि करछु भगवान मु तो भगवान न ये से ब्रह्मा उठे कहछन्ती नहीं एटा से कहया कथा जेतु से भी भगवान भक्त भगवान कथा कौन कहते प्रभु जी अच्छा प्रभु जी आपण तो टेक्निकल एक्सपर्ट आपण को वॉइस टा कहीं क्लियर आसनी मोबाइल टा दूरे की रखिछन्ती कि मोबाइल टा कांध को रखु नाहंती रखी कहंतु सुंदर प्रश्न पचारुछन्ती किंतु टिके स्पष्ट होनी मोबाइल कथा ब्रह्मा भी कहि पाए थांते जेतु भगवान भक्त तो मते ई वाक्य गुडा को मोबाइल प्रयोज्य नुहे भगवान पाए प्रयोज्य अब देखिबा आगु कोन कहउछन्ती ब्रह्मा ब्रह्मा आगु को कोन कहिबे ब्रह्मा तो कहिछन्ती प्रथम ना द्वितीय स्कंदर कहिछन्ती जे लोक माने एंटी मोहित होई कि मां ब्रुवंती जगत गुरु मते सब किछि बोली भाबंती मुहेंती जात सुरय समस्त मध्य भगवान को माया रे मोहित होई जानती तेणु ब्रह्मा भी कहिछ ना ना नारायण परावेदा नारायण परामखा नारायण पराजगा नारायण पराक्रिया ऐसे जिनसे भगवान कहिछन ना आ शेष रे भगवान नारायण होचंती सब किछ हरे कृष्ण हरि बोल वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमो समस्तं दंडवत् प्रणाम।